Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 7th of December. In this video students, we will be talking about three new criminal laws. Then we will be talking about JGU and IITM. They have collaborated to inaugurate India's first constitution museum. Then we will be talking about Harimau Shakti, that is an exercise between India and Malaysia. Next thing we will be talking about Federal Bank. They have launched a saving account for senior citizens. Then India and ADB, they have signed $98 million loan agreement. Next thing, India RBI has injected 6956 crore rupees amid liquidity deficit, and CRR has also been reduced. We will be discussing all these things in detail, so stay tuned with us till the end. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe, as we are one stop solution for current affairs. We upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. Weekly current affairs, monthly current affairs, and topic wise are uploaded regularly, so that it becomes easy for you to understand the concepts and grasp those concepts for your competitive exams. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs students. We are talking about Prime Minister Narendra Modi. He has dedicated the successful execution of the three new criminal laws to the nation in Chandigarh. Which are these three new laws we are talking about, right? Let's move to them first. Correct. These are your Bharatiya Nyay Second Sanhita BNS2 Act of 2023, right? It has retained acts such as rape, stalking and insulting the modesty of a woman as a criminal activities, and it has increased the maximum age of the victims from 16 to 18 years of the age in the case of gang rape. Also, Bharatiya Nyay Sanhita, it comprises 20 chapters and 358 sections. Just first thing. Second is your Bharatiya Nagrik Suraksha Second Sanhita Act, that is BNSS2 Act of 23. Right? This seeks to replace the Criminal Procedure Code of 1973. The CRPC, that is Criminal Procedure Code, provides for the procedure for arrest, prosecution and bail, and this has mandated the forensic investigation for the offences punishable with 7 years of imprisonment or more. Third is your Bharatiya Sakshay Second Abhiniyam Act, that is BSA2 Act. Right, this Bharatiya Sakshay Second Abhiniyam Act 23 is a law that replaces the Indian Evidence Act of 1872. It retains the most provisions of the IEA, including those on confessions, relevancy of facts and burden of proof. Correct. One more thing you need to remember here, that Prime Minister Narendra Modi dedicated the successful implementation of these three new criminal laws to the nation during a program organized with the theme Secured Society, Developed India from Punishment to Justice, and this event was held where? It was held in New Delhi. Moving on. Next we are talking about is JGU, that is your OP Jindal Global University. They along with IITM collaborated to inaugurate India's first constitution museum. As it is a museum, it will be having various artifacts, right? Various ancient books or various books that are related to the India's history. Then we will be having various other, right, books, journals, right, items that are related to our history. Correct. And here this museum was inaugurated by Om Birla, the Speaker of Lok Sabha. Apart from this, remember, this is India's first constitution museum, right, that has been established with the help of Indian Institute of Technology, Madras. Where this will be? It will be in Sonipat,
Haryana. And this museum was inaugurated to commemorate 75th anniversary of the adoption of the Constitution of India on 26th of November 1949. Visitors here can experience a 360-degree view of pre-independence India, learning about the journey that led to the drafting of the Constitution of India. Next is international affairs. Fourth edition of Indo-Malaysia Joint Military Exercise Harimau Shakti began in Malaysia. So what is the location where the fourth edition of Indo-Malaysia Joint Military Exercise Harimau Shakti is taking place? It is being held in Malaysia, right? It is being held between Indian Army and Malaysian Army. Previously, the last edition of this exercise was held in Umroi, Meghalaya. That is the third edition of this exercise was held in Umroi, Meghalaya. Then from India, here remember it was Meher Regiment. Meher Regiment that took part in this Indo-Malaysia exercise Harimau Shakti. Correct? Next is banking and finance. Federal Bank, they have recently launched a new type of saving account for the senior citizens. Correct? This will provide a customized financial services for the customers who are aged 55 years and above. Right? This will cater to the diverse financial need of those individuals. The account holders will receive various insurance benefits such as your free early health checkup, hospital cash facility, and doctor on call facility. The customers here will also get 25% discount on the locker rent. Apart from this, if we talk about Federal Bank, who is the managing director and chief executive officer here, KVS Manian. Headquarter, it is in Aluva, Kerala. And when was it established? It was established in 1931. Moving on, India and Asian Development Bank, they have recently signed $98 million loan to boost the horticulture productivity in India. What is horticulture? Horticulture is basically plants, or we can say fruits and vegetables. Right? This is your horticulture. Correct? When the farmers grow fruits and vegetables. So in order to grow the horticulture sector, to make sure the productivity increases in the horticulture so that more fruits and vegetables can be grown, for this a loan of $98 million was signed between India and Asian Development Bank. That means Asian Development Bank will be giving $98 million to the government of India, that will be further used, correct, to improve the crop yield, quality and resilience to the climate change of those crops. Also, the project aims to establish at least 6 clean plant centers. These centers will be equipped with advanced laboratories for disease diagnostic and staffed with trained experts to enhance the plant health management. Also remember, if we talk about India, India is the second largest producer of rice, wheat, cotton, sugarcane, groundnut, and India is the 8th largest exporter of agriculture products. Next is RBI. Reserve Bank of India has injected 6,956 crore rupees amid the liquidity deficit that is going on in the banking system. Correct? And the liquid deficit has arisen due to a negative balance of payments in the third quarter, totaling to $23 billion. Also, the core liquidity dropped from a peak surplus of 4.6 trillion rupees in September 27, 2024 to 1.6 trillion rupees by November 15, 2024. Also, remember recently RBI has lowered the cash reserve ratio. The repo rate has been remained same at 6.5%, but CRR has reduced from 4.5 to 4%. What is this cash reserve ratio? Basically, this says that if a bank is having, say for example, 100 rupees, then out of this earlier 4.5 rupees should be there with the bank in the form of cash, right? Rest of the amount they can donate, or sorry, rest of the amount they can lend to various institutions or individuals, right? Similarly, if we talk about the statutory liquidity ratio, what does this mean is, this means if
a bank is having 100 rupees, then they need to maintain at least 4.5%, that is 4.5 rupees in the forms of bond and securities. Correct. So coming back to CRR, so CRR has been reduced from 4.5 to 4%. That means now the banks will be having 0.5. If we are considering 100 rupees, among them banks will be having 0.5 more rupees that they will be able to lend into the market. What this will generate is that now there will be more liquidity in the market, there will be more money in the market that will be provided to various organizations in terms of a loans, right? So as now they need to maintain less amount, right? So that means the banks will be having excess amount that they will be giving out on loan to various organization. With this move, you will be seeing that the FD rates will also start reducing now, right? In the coming year, you will be seeing now from 2025 onwards, the rates that the FD were having so high rates, they will be also start to come down. Next is economy and business. SBI report has revealed India's GDP to drop below 6.5% in FY25. So we know that this quarter was a little bit slow growth for India, right? It slowed to 5.4%, due to which we are seeing that other organizations also they have lowered their expectation now. For example, SBI in their ERD report, that is Economic Research Department report, they stated that India's GDP now will be growing at 6.5% in FY25. Correct? Take a note of this. Right? Then if we talk about State Bank of India, who is the chairperson here? CS Sethi is the chairperson here. Correct. Then when was it established? It was established in 1955. Moving on. Next is Morgan Stanley. They have lowered the India's GDP growth to 6.3% from 6.7% for FY25. Here you can see that it is SBI that has lowered the GDP growth rate to 6.5%. Whereas if we talk about Morgan Stanley, they also lowered it to 6.3%. That was earlier projected at 6.7%. If we talk about Morgan Stanley, where is the headquarters of Morgan Stanley? It is in New York, USA. Moving on, next is DFS, that is your Department of Financial Services. This comes under the Ministry of Finance, and they have recently granted the approval for the consolidation of IFCI Group. What is IFCI? IFCI is your Industrial Finance Corporation of India. It was set up in 1948 to provide medium and long-term finance to the industry. Correct? So recently, DFS has granted approval for the consolidation of IFCI Group. Under this consolidation plan, the Stock Holding Corporation of India Limited, IFCI Factors Limited, IFCI Infrastructure Development Limited, and IIDL Realtors will be consolidated, that is merged or amalgamated with IFCI Limited. Next, if we talk about appointment and designation, this is important. As you can see here in the picture, she is who? She is Namibian Vice President Nandi Nadiava, right? And has been elected as the first female president of Namibia. Take a note of this. Why important? Because she became the first female president of Namibia. Who she succeeded? She succeeded Nangolo Umba. Correct? And with this, she became the 5th president of Namibia and 4th African leader to hold the post of president in their respective country. Next, also you can see her in the picture. This appointment is also important, right? She is Ngozi Okonjo-Iweala, right? She is the Director General of World Trade Organization, and now she has been reappointed to the position of the Director General of World Trade Organization, and she will be in this position for the next 4 years, that will be starting from 1st of September 2025, right? And Ngozi Okonjo-Iweala became the first woman and first African to lead the World Trade Organization. Where is the headquarters of World Trade Organization? It is in Geneva, Switzerland, and it was established in 1995. Next is acquisitions and mergers. CCI is approval on 3rd of September. Let's look at them. First is it has approved the acquisition of certain shareholding of New Delhi based Shiprocket Private Limited by Tokyo Japan based MUFG Bank Limited, which is a wholly owned subsidiary of Mitsubishi UFJ Financial Group. This is your first. Second, it has approved the acquisition of certain shareholding of Shiprocket
company only by USA based early venture capital firm, that is KDT Ventures Holding. Third, it has approved the subscription of optionally convertible debentures, that is your OCD, of Bengaluru Karnataka based GMR Infrastructure Enterprise Limited by Platinum Stone A14 Trust, a trust established under the UAE based in Abu Dhabi Global Market. Correct? If we talk about CCI, who is the chairperson of CCI? Ravneet Kaur. Next is science and technology. NASA's swim robots to explore ocean worlds. I repeat, NASA, they have announced the development of underwater robots capable of exploring the depth of our solar system's ocean worlds. The mission is called SWIM, that is Sensing with Independent Micro Swimmers. It is currently in the testing phase, with the latest prototype demonstrating the autonomous control and navigation in a swimming pool at a Caltech in Pasadena, USA. Right? Take a note of this. Next is related to sports. Double Olympic champ Alistair Brownlee has announced triathlon retirement. I repeat, Alistair Brownlee, right, the British triathlete and a double Olympic gold medalist, has recently announced her retirement. Next is your obituary. Thomas E. Kurtz, co-creator of Basic Computer Language, has recently passed away. I repeat, the basic programming language creator, right, Thomas E. Kurtz, has recently passed away. Next is renowned writer and Kendra Sahitya Academy awardee Omcheri NN Pillai, also passed away at the age of 100 in New Delhi. NN Pillai began his career with All India Radio by joining its Malayalam news division in 1951. Correct? And he recently passed away. He also received the Sahitya Academy Award for his contribution to the Malayalam literature in 2010. Next is your important days. International Day for the Abolition of Slavery, observed on 2nd of December. This day is to create awareness about eradicating the modern slavery, such as human trafficking, sexual exploitation, severe child labor, forced marriages, and so on. And on 2nd of December, United Nations General Assembly will mark the 75th anniversary of the Convention for the Suppression of Traffic in Persons and observe the International Day of Abolition of Slavery 2024. This remember, this day is observed by whom? It is observed by International Labour Organization, the headquarters of which is in Geneva, Switzerland, and who is the Director General of ILO, Gilbert Huangbo. Next is your National Pollution Control Day, observed on 2nd of December, and this day is observed basically to correct, to mark the memory of all those people who lost their lives in the 1984 Bhopal gas tragedy, right, that took place on 2nd of December. The theme for this day is Clean Air, Green Earth. Clean Air, Green Earth is the theme here, right? And it was methyl isocyanate, right? This is the gas, this is the hazardous gas that was released that led to the death of multiple peoples. Next is your International Day of Persons with Disability, observed on 3rd of December, and it is to raise awareness about the rights and well-being of persons with disabilities in the political, social, economic, and cultural spheres. Correct? Take a note of this. Observed on 3rd of December. Now students, let's move to some revision part that will be beneficial in your learning. Next, who has been recently appointed as the Chief Secretary of Bihar? So Amrit Lal Meena appointed as the new Chief Secretary of Bihar. He will be succeeding whom? He will be succeeding Brijesh Mehrotra. Next, who was recently appointed as Managing Director of NABARD Consultancy Services? So Y. Hara Gopal has been appointed as Managing Director of NABARD Consultancy Services. Next, who has recently become the first Indian to be officially named as the Foundation Ambassador of International Table Tennis Federation Foundation? So Sharat Kamal Achanta has been appointed as has become the first Indian to be officially named as the Foundation Ambassador of ITTF Foundation. Next,
who has been recently appointed as the new Prime Minister of France. So, Michael Barnier has been appointed as the new Prime Minister of France. Next, who was recently recommended for the position of Managing Director of SBI by FSIB, that is Financial Services Institution Bureau. So, who was recommended? Rama Mohan Rao Amara. He was recommended for the position of Managing Director of SBI by FSIB. Who is the chairman of SBI? CS Sethi. Next, who was recently named as the member of the Board of Securities and Exchange Board of India? That is, who was named recently as the member of who was recently named as the member of the board of SEBI. So, Deepti Gaur Mukherjee was named as the member of the board of SEBI. Next, who was the first Indian to be elected as the president of Olympic Council of Asia in September 2024? So, Raja Randhir Singh was elected, has become the first Indian to be elected as the president of the OCA in September 2024. Next, who has been recently appointed as the managing director and chief executive officer of IFCO Tokyo General Insurance Company Limited. So, who he will be? Tell me, who has been appointed as MD and CEO of IFCO Tokyo General Insurance Company? So, Subrata Mondal. And Subrata Mondal will be replacing H.O. Suri. Next, who has been recently appointed as the Financial Secretary of the Ministry of Finance? So, Tuhin Kanta Pandey appointed as the Finance Secretary of the Ministry of Finance, and he will be replacing whom? He will be replacing T.V. Somnathan. Next, who has been recently appointed as the Controller of Personal Services in the Indian Navy? So, Vice Admiral Vineet McCarthy, right, has been recently appointed as the Controller of Personal Services in the Indian Navy. Next, who has been recently elected as the chairperson of the Committee of Parliament on Official Language? So, Amit Shah, our Home Minister, right, he has been appointed as the chairperson of the Committee of Parliament on Official Languages. And remember, 2024, it marks the 75th year since Hindi was accepted as the official language. Next, who has been recently appointed as the Chief Secretary of Arunachal Pradesh? So, Manish Kumar Gupta has been appointed as Chief Secretary of Arunachal Pradesh. He will be succeeding whom? He will be succeeding C.S. Dharmendra. Next, and we know that we saw that Dharmendra ji has been appointed as the Chief Secretary of Delhi. Next, who is said to be re-elected as the President of FIH for a second term? So, Mohammad Tayyab Ikram will be appointed as the President for the second term of FIH. Next, which of the following person is not one of the 6 senior advocates who were recently appointed by ACC to serve additional Solicitor Generals in Supreme Court of India? Among the following, who is not? So, Tushar Mehta. Rest all are them. Next, who has been recently appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Galaxy Health Insurance? So, Gopal Srinivasan, right, has been appointed as Managing Director and Chief Executive Officer of Galaxy Health Insurance. Next, name the Indian cricketer who has recently on board as brand ambassador of Shriram Finance Limited. So, Rahul Sharan Dravid, right? Rahul Dravid has been appointed as the brand ambassador of Shriram Finance Limited. Next, who has been recently appointed as the new Prime Minister of Jordan? So, Jafar Hassan appointed as the new Prime Minister of Jordan. Next, who has been recently appointed as the brand ambassador of the Ministry of Port Shipping and Waterways? So, Manu Baka, the athlete, right? She is related to shooting and she has won bronze medals in the games, Olympic Games that were held recently in Paris.
and she has been appointed as the brand ambassador of the Ministry of Port Shipping and Waterways. Next, who has been recently elected as the president of the 68th General Conference of the International Atomic Energy Agency? So, Sang Wook Ham, right, has been elected as the president here of IAEA during the 68th General Conference of IAEA. Next, who has been recently appointed as the Director General of Narcotics Control Bureau, that is NCB. So, Anurag Garg has been appointed here as Director General. He will succeed whom? He will be succeeding here Anish Dayal Singh. Next, who has been recently appointed as the Director General of Aeronautics Development Agency, the autonomous body that comes under the Ministry of Defense. So, Jitendra J. Jadhav. He has been recently appointed as the Director General of ADA. Right? Take a note of this. Next, who was sworn in as the 8th Chief Minister of Delhi in September 2024? So, Atishi, right? A senior leader of Aam Aadmi Party took oath as the 8th Chief Minister of Delhi, right? And she was appointed by the President Draupadi Murmu ma'am, and Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena, he administered the oath and secrecy to office. She replaced whom? She replaced Arvind Kejriwal. And Atishi, she became the 3rd woman to become the Chief Minister of Delhi. Next, who has been recently elected as the President of Sri Lanka? So, Anura Kumara Dissanayake, right, has been appointed as elected as the President of Sri Lanka. Next is who was appointed as the next Chief of Air Staff in the Indian Air Force with effect from September 30, 2024. So, who has been appointed here as the new next Chief of Air Staff? So, Amarpreet Singh, right? Ministry of Defense has appointed Air Marshal Amarpreet Singh as the next Chief of Air Staff. He has been a recipient of Param Vashisht Seva Medal as well as the Ati Vashisht Seva Medal. Next, who has been recently appointed as the Director of the National Crime Records Bureau with immediate effect? So, Alok Ranjan. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on Daily Current Affairs Content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 7 दिसंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 नए क्रिमिनल लॉज की। देन JGU एंड IITM ने कोलैबोरेट किया ताकि इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम को सेटअप किया जा सके। देन हम हरिमोह शक्ति की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेडरल बैंक के द्वारा एक नया सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया गया। देन RBI के द्वारा जो आपकी कैश रिजर्व रेशो है उसको कम कर दिया गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। इंडिया एंड ADB के बीच में $98 मिलियन का लोन साइन हुआ, किस लिए हुआ वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड GDP हमारी जो प्रोजेक्शन है कई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसको लोअर भी किया गया है। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी अच्छा सेशन होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हमारे साथ और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो डालते हैं सुबह 5 बजे। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड की जाती है, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर की जा सके।
स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर से। हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 नए क्रिमिनल लॉज लाए गए थे। वो लॉज कौन से हैं, सबसे पहले तो वही देखते हैं। पहला है भारतीय न्याय सेकंड संहिता एक्ट, दैट इज BNS2 एक्ट, राइट। इसने रिटेन किया एक्ट सच एज रेप, स्टॉकिंग एंड इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वीमेन एज क्रिमिनल एक्टिविटीज, एंड यहाँ पे विक्टिम को 16 से 18 साल की एज कर दी गई है। दूसरा आ जाता है आपका BNSS2 जो कि है भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता एक्ट, राइट। ये सीक करता है टू रिप्लेस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 जो कि अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एंड बेल के लिए है। तीसरा आ जाता है भारतीय साक्ष्य सेकंड अधिनियम एक्ट जो कि है BSA2 एक्ट, राइट। ये रिप्लेस करता है इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 एंड ये रिटेन करता है प्रोविजंस ऑफ दिस IEA जैसे कन्फेशंस, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स एंड बर्डन ऑफ प्रूफ। तो ये 3 एक्ट यहाँ पे फाइनली इंप्लीमेंट किए गए एंड इनको लॉन्च किया गया था PM मोदी के द्वारा ड्यूरिंग एन इवेंट जिसकी थीम थी सिक्योर सोसाइटी डेवलप्ड इंडिया फ्रॉम पनिशमेंट टू जस्टिस, कहाँ पर, चंडीगढ़ में। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड IIT मद्रास जो कि तमिलनाडु में है। इनके द्वारा अभी बेसिकली कोलैबोरेट किया गया ताकि इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम को एस्टेब्लिश किया जा सके एट OP जिंदल यूनिवर्सिटी इन सोनीपत, हरियाणा, करेक्ट। ये जो म्यूजियम होगा ना, बेसिकली आपका पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, आपके कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसकी क्या प्रोसेस रही, करेक्ट, किन किन लोगों की भागीदारी थी, यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स लिए गए, उन सभी को यहाँ पे म्यूजियम में दर्शाया जाएगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को शोकेस किया जाएगा, राइट, जो कि हमारे कल्चर को प्रमोट करेगा एज वेल एज जो स्ट्रगल फेस किया गया है हमारे लोगों के द्वारा, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उन सबको यहाँ पे दर्शाया जाएगा, राइट। AI का यूज़ किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा यहाँ पे ताकि बेटर एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया जा सके कस्टमर लोगों को जो यहाँ पे देखने आएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर। हम बात कर रहे हैं हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज की। इंडिया एंड मलेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज है। इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज रहेगी एंड ये 4th एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज कहाँ पर हो रही है, मलेशिया में हो रही है। ये 4th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज। अगर मैं 3rd एडिशन, लास्ट एडिशन की बात करूँ, वो कहाँ पर हुई थी, उमरोई मेघालय में हुई थी वो, ठीक है। इस एक्सरसाइज में इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया, तो इंडिया से मेहर रेजिमेंट का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला है, ये याद रखिएगा, राइट। 78 पर्सनल यहाँ पे मेहर रेजिमेंट के इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिया की तरफ से। फिर आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पर। फेडरल बैंक के द्वारा अभी एक नया सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है सीनियर सिटीजन्स के लिए, 55 साल से ऊपर के लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। इस पर आपका इंश्योरेंस कवर होगा, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस होगा, डेबिट कार्ड होगा, फैमिली के बेनिफिट्स होंगे एंड मैनी अदर, करेक्ट। यहीं पे आप देखेंगे 25% डिस्काउंट भी मिलेगा आपको लॉकर रेंट पर अगर आप बैंक में लॉकर रहते हैं, राइट। तो ये है एस्टीम सेविंग अकाउंट जो कि फेडरल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। फेडरल बैंक की बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, KVS मानियन। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, अलुवा, केरला में। 1931 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर अभी इंडिया में हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की प्रोडक्शन, राइट। तो इसको बढ़ाने के लिए इंडिया में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को $98 मिलियन का लोन अप्रूव करा है, राइट। इससे क्या होगा, जो हमारी क्वालिटी है वो बेटर होगी, जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बेटर होगी। यहीं पे हम बात करेंगे कि यील्ड ज़्यादा बेटर करने की कैसे बात करें एंड जो क्रॉप्स हैं उनको कैसे क्लाइमेट रेजिलियंस बना सके, उनके ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा। इसी के अंडर आप देखेंगे प्रोजेक्ट एम्स टू एस्टैब्लिश 6 क्लीन प्लांट सेंटर्स। ये जो सेंटर्स होंगे ये एडवांस्ड इक्विप्ड होंगे एडवांस लेबोरेटरीज के साथ फॉर डिजीज डायग्नोस्टिक्स एंड स्टाफ्ड विद ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स टू एनहांस प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। यहीं पे याद रखेंगे इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट का, राइस का, कॉटन का, ग्राउंडनट का, शुगर केन का, एंड इंडिया 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, राइट। ये भी याद रखेंगे एग्रीकल्चर गुड्स का। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अभी RBI ने इंजेक्ट करा 6,956 करोड़ रुपीस एमिड लिक्विडिटी डेफिसिट। अब देखो, अभी हम जानते हैं RBI के द्वारा जो कैश रिजर्व रेशियो है ना, उसको भी 4.5 से रिड्यूस करके 4% कर दिया है। कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली क्या होता है, मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, राइट। उसमें से गवर्नमेंट RBI बोलता है कि आपको 4.5%, अभी तक 4.5% था, तो मतलब 4.5 रुपीज़ आपको कैश की फॉर्मेट में रखना है
और बाकी 95.5 रुपीज़ को आप लेंड कर सकते हैं टू इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल्स। अब इस कैश रिजर्व रेशो को क्या कर दिया, कम कर दिया, 4.5 से कर दिया है 4%। मतलब अब अगर आपके पास 100 रुपये हैं किसी बैंक के पास तो वो 4 रुपये ही कैश रखेगा, बाकी लैंड कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप बैंकों के पास 0.5 रुपीज़ एक्स्ट्रा है जो कि वो लैंड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपकी मार्केट में मनी का इन्फ्यूजन है वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा लोग यहाँ पे लोन ले पाएंगे, ज़्यादा पैसा लोन के तौर पे मिल पाएगा। एंड इससे एक और चीज़ होगी, आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो फिक्स डिपॉजिट के जो रेट्स है ना वो आपको गिरते हुए दिखेंगे। एफडी रेट्स कम हो जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 2025 ऑनवर्ड्स। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। तो एसबीआई रिपोर्ट अभी रिवील करती है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 6.5% ग्रो करेगी इन FY25। देखो अभी 5.4% की हमें ग्रोथ रजिस्टर देखने को मिले इन द सेकंड क्वार्टर, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम थी, राइट। एंड काफ़ी न्यूज़ इस पे चल रही है, काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं कि क्या रीज़न हो सकता है, क्या वजह रह सकती है। बट इसका हम डायरेक्ट इम्पैक्ट देखेंगे कि क्या जो पहले हम प्रोजेक्ट कर रहे थे कि हम 7%, 6.5% तक FY25 में ग्रो करेंगे, अब वो प्रोजेक्शन यहाँ पर डाउन होती हुई दिख रही है टू 6.5%। ये एसबीआई के द्वारा रिपोर्ट किया गया, एसबीआई की ईआरडी इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। ठीक, एसबीआई की मैं बात करूं तो चेयरपर्सन कौन रहेंगे, CS सेठी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र एंड 1955 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। इसके बाद आप देखेंगे कि मॉर्गन स्टैनली ने भी यहाँ पे इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको लोअर कर दिया है टू 6.3% फ्रॉम 6.7% फॉर FY25। मॉर्गन स्टैनली का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क USA में। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर डीएफएस क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। यहाँ पे इन्होंने अप्रूवल दे दिया है फॉर कंसोलिडेशन ऑफ IFCI ग्रुप। IFCI ग्रुप यहीं पे आपका देखेंगे स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, IFCI फैक्टर्स लिमिटेड, IFCI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड एंड IIDL रियल्टर्स, इनको मर्ज किया जाएगा विद IFCI लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर। हम बात कर रहे हैं पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया कौन बनी है, नांदी नदाइवा। आप यहाँ पे इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये 5वीं प्रेसिडेंट बनी है नामीबिया की एंड 4th अफ्रीकन फीमेल लीडर टू होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है नामीबिया की। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, आप यहाँ पे इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये है नगोजी ओकोंजो-इवेला, राइट। ये पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल अपॉइंट की गई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, एज वेल एज फर्स्ट अफ्रीकन वीमेन जिनको अपॉइंट किया गया था यहाँ पे प्रेसिडेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इनका अब टर्म 4 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर 2025 ऑनवर्ड्स, राइट। नेक्स्ट बात करें, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, यह है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आ जाते हैं अप्रूवल्स पे, सीसीआई के अप्रूवल्स पे आप देख सकते हैं इन्होंने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ सर्टेन शेयर होल्डिंग ऑफ शिप रॉकेट बाय टोक्यो जापान बेस्ड MUFG बैंक। वहीं पे शिप रॉकेट की और स्टेक्स को एक्वायर किया जाएगा किसके द्वारा, USA बेस्ड अर्ली वेंचर कैपिटल फर्म KDT वेंचर्स होल्डिंग के द्वारा। एज वेल एज अभी अप्रूव किया गया सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ बेंगलुरु बेस्ड GMR इंफ्रा एंटरप्राइज लिमिटेड बाय प्लेटिनम स्टोन A 2014 ट्रस्ट। तो ये 3-4 चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे। CCI की अगर मैं बात करूँ तो चेयरपर्सन कौन रहेंगी, रवनीत कौर। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इस्टेब्लिश 2003 में किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। नासा के स्विम रोबोट टू एक्सप्लोर ओशन वर्ल्ड्स। देखो हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे मून्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में अलग अलग प्लैनेट्स के, जिनके सरफेस पे तो आइस है लेकिन उनके सरफेस के नीचे हमें वाटर देखने को मिल सकता है, राइट। तो उनको एक्सप्लोर करने के लिए अब नासा के द्वारा अभी रिसेंटली एक स्विम बनाया गया। स्विम क्या है, सेंसिंग विद इंडिपेंडेंट माइक्रो स्विमर्स, राइट। ये अंडर वाटर रोबोट्स रहेंगे जो कि डेप्थ को पानी के अंदर जाके हमारे सोलर सिस्टम में जो ओशन वर्ल्ड्स हैं उनको स्टडी करने का काम कराएगा, राइट। और ये अभी टेस्टिंग फेज में है। इसका जो लेटेस्ट प्रोटोटाइप है उसको यहाँ पे कैलटेक में के स्विमिंग पूल में टेस्ट किया गया इन पैसेडिना USA। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर स्टूडेंट्स। डबल ओलंपिक चैंपियन एलिस्टेयर ब्राउनली, इन्होंने अपनी अनाउंसमेंट कर दी है, राइट। डायरेक्ट न्यूज़, टेक अ नोट ऑफ इट। फिर आ जाते हैं ऑबिट्री के ऊपर। थॉमस E कट्स, ये को क्रिएटर हैं बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज के, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर रिनोन्ड राइटर एंड केंद्रा साहित्य
अकेडमी अवार्डी ओम चेरी एन पिल्लाई, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 100 इन न्यू दिल्ली। अगर हम इनकी बात करें, इन्होंने बहुत सारे प्लेज में यहाँ पे पार्ट लिया है, करेक्ट, एंड इनको यहाँ पे साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। कब सम्मानित किया गया था इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से? ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहेंगे, तो पता होना चाहिए आपको 2010 में। और किस लिए? मलयालम लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए, राइट। रिनोन मलयालम प्ले राइट एंड राइटर थे, ये प्रोफेसर थे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। 2 दिसंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, मॉडर्न स्लेवरी, चाइल्ड लेबर, फोर्स्ड मैरिजेस, इनको यहाँ पे ख़त्म किया जा सके। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? गिलबर्ट वांगबो। जिनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर। 1919 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। 2 दिसंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि पॉल्यूशन को ख़त्म किया जा सके कहीं ना कहीं, एज वेल एज ये ऑब्जर्व किया जाता है ताकि 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जहाँ पर मीथेल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हो गई थी, जो कि एक हजारडस गैस है, उससे काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हुई थी। तो उन लोगों को ऑनर करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार हमने 2024 में उसकी 40वीं एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी। इसकी एक थीम रहेगी क्लीन एयर ग्रीन अर्थ, ये थीम रहेगी यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। 3 दिसंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो भी आपके डिसेबल पर्सन्स हैं, राइट, उनकी हेल्प की जा सके, राइट, उनको पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिक जो भी उनके राइट्स हैं उनके बारे में उनको अवेयरनेस क्रिएट यहाँ पे कराई जा सके, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। किस कंट्री ने अभी ऑफिशियली डिसाइड किया कि चाइना के जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको ज्वाइन नहीं करेंगे? इसी को हम न्यू सिल्क रोड के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले तो थी इंडिया, राइट, इन्होंने बोला कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। एंड उसके बाद ब्राज़ील ने बोला कि हम भी इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। एंड इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी 2 ब्रिक्स की कंट्रीज हैं जिन्होंने बोला है कि चाइना के BRI इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं करेंगे? तो पहली तो थी इंडिया और अब दूसरी बन गई है ब्राजील। नेक्स्ट एक और चीज, इसी को हम वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट द डेजिग्नेशन ऑफ सेंट्रल नोडल ऑफिसर अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको 1967 का एक्ट है, UAPA यूपा, करेक्ट। इसको चेंज कर दिया गया फ्रॉम एडिशनल सेक्रेटरी टू विच पोजीशन? तो इसको चेंज कर दिया गया फ्रॉम एडिशनल सेक्रेटरी टू जॉइंट सेक्रेटरी। Next, who has been recently named as the Asia's Men's International Player of the Year 2023 by AFC during 28th edition of the AFC Annual Award Ceremony, जो कि सियोल साउथ कोरिया में हुई? तो सॉन ह्यूंग मिन, राइट, ये वो एशियाज मैन इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर बने, करेक्ट। 28th एडिशन ऑफ AFC के दौरान इनको घोषित किया गया। वहीं पे अगर हम बात करें एली कारपेंटर, ये बनी एशियाज वीमेन इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ USA? तो डोनाल्ड जॉन ट्रंप इनको अपॉइंट किया गया है 47th प्रेसिडेंट, एज वेल एज ये 45th प्रेसिडेंट भी थे। 46th प्रेसिडेंट कौन थे? वो है जो बाइडेन, जो कि अभी प्रेसिडेंट है, राइट। एंड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप किनको सक्सीड करेंगे? तो जो बाइडेन को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू प्रेसिडेंट, राइट। एंड ये जनवरी 2025 में उस पोस्ट को संभालेंगे। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द SSC के चेयरमैन कौन बने हैं? S. गोपाल कृष्णन, करेक्ट। टेक नोट ऑफ दिस। ये सक्सीड किनको करेंगे? राकेश रंजन को। इसके अलावा V. उमाशंकर, इनको अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तन्मय कुमार, इनको अपॉइंट किया गया स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। विक्रम देवदत्त, इनको अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। नेक्स्ट, उस स्पेसशिप का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स थे। तो वो है शेंजू 19। एंड ये स्पेसशिप आपका टियांगोंग स्पेस स्टेशन पे जाएगा, जो कि चाइना का स्पेस स्टेशन है। नेक्स्ट, विच सब डिविजन हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 17th डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड? तो किसको 17वीं डिस्ट्रिक्ट बन गई है नागालैंड की? मेलूरी। एंड मेलूरी में कौन सी ट्राइब देखने को हमें मिलती है? मेलूरी में हमें पोचुरी नागा ट्राइब देखने को मिलती है। नेक्स्ट, उस इंडिया की पहली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज का नाम बताओ जिसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से यहाँ पे बर्थ किया गया है। वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान से इनके काफ़ी सारे एग्स कलेक्ट करे गए थे एंड उनको हैच किया गया, उनकी ब्रीडिंग की गई। एंड
इस प्रेमिसाइज में आप देखेंगे कि उनको कंजर्व करा जा रहा है ताकि ये लुप्त ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए। नेक्स्ट, 7th सेशन ऑफ ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमें देखने को मिला न्यू दिल्ली में फ्रॉम 3rd to 6th ऑफ नवंबर। इसमें से अगर हम बात करें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही रहेगा, बी गलत रहेगा। बी कह रहे थे कि जो 7th सेशन था इंटरनेशनल सोलर असेंबली का, यहाँ पर इंडिया को प्रेसिडेंट एंड शीशेल्स को को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है आने वाले 2 सालों के लिए, 2024 से 2026 तक। तो नहीं, शीशेल्स को नहीं, फ्रांस को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। इंडिया को प्रेसिडेंट एंड फ्रांस को को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने होस्ट की 16th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 21 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में। तो किस कंट्री ने होस्ट करी? तो ये होस्ट की गई आपकी कोलंबिया के द्वारा। ठीक है, एंड यहीं पे एक एटलस भी लॉन्च किया गया है, मार्क करके चलेंगे। एज वेल एज यहाँ पे जो थीम रहेगी वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूर मार्क कीजिएगा। थीम है पीस विद नेचर, राइट। Next, who has recently co-chaired the second ministerial meeting of the Economy and Investment Committee under India-Saudi Strategic Partnership Council, रियाद, सऊदी अरेबिया में? तो पीयूष गोयल जी के द्वारा ये को-चेयर की गई थी एंड यहीं पर इन्होंने 8th एक और चीज में पार्टिसिपेट किया, वो है 8th एडिशन ऑफ FII, जो कि है 8th एडिशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। एंड ये जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है 8th एडिशन, इसकी थीम थी इनफाइनाइट हॉराइजंस, इन्वेस्टिंग टुडे शेपिंग टुमारो। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किया एक MOU ऑन बायलेटरल डिफेंस कॉपरेशन विद इंडिया? तो अल्जीरिया ने यहां पे ये MOU साइन किया है इंडिया के साथ। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली इशू किया पहला बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर फोकस्ड बॉन्ड? $100 मिलियन का ये बॉन्ड रहेगा जो फंड करेगा वेरियस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यहाँ पे फंड किया गया है, इस बॉन्ड को लॉन्च किया गया जो कि $100 मिलियन का बॉन्ड रहेगा। एंड COP 16 के दौरान जो कि कैली कोलंबिया में हुई थी उसके दौरान इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, RBI के द्वारा हाफ ईयरली रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ गया 646.42 बिलियन इन मार्च 2024 से सितंबर 2024 में कितना हो गया? वो बढ़कर 705.78 बिलियन डॉलर हो गया। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली रिसीव द महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड इन UK? तो वो है दारा सिंह खुराना, राइट। इन्होंने रिसीव किया महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड को इन UK एंड इनको सम्मानित किया गया बिकॉज ऑफ हिज वर्क टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ इश्यूज। इनके लिए जो उन्होंने काम किया है, राइट, उनको यहाँ पे ऑनर करने के लिए महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया UK में। नेक्स्ट, विच सिटी इन इंडिया हैज रैंक द सेकेंड इन द रिसेंटली रिलीज 15th एडिशन ऑफ लोनली प्लैनेट्स बेस्ट इन ट्रेवल लिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड? तो कौन सी सिटी इन इंडिया रैंक द सेकेंड? वो है पुडुचेरी। पहली कौन सी रही ये आप मुझे होमवर्क बताओ, राइट, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकेम द 46th सिग्नेटरी ऑफ द आर्टेमिस अकॉर्ड? आर्टेमिस अकॉर्ड लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? नासा के द्वारा। इसका एम क्या है? फॉर द पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस, ठीक है। एंड किस कंट्री ने भी ज्वाइन किया है? रिपब्लिक ऑफ साइरस ने इसको ज्वाइन किया है, करेक्ट, एज द 46th सिग्नेटरी कंट्री। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द अर्थ अपर एटमॉस्फेयर हेल्प्स टू कूल डाउन द अर्थ? अभी साइंटिस्ट के द्वारा रिसर्च की गई है जिसमें पता लगा अगर हम डायमंड डस्ट को एटमॉस्फेयर में स्प्रे कर देते हैं तो ये सोलर रेडिएशन को कम करेगा एंड हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको कूल करने का ये बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि ये काफ़ी चीप सॉल्यूशन रहेगा अगर हम बाकी सोर्सेज के कंपेरिजन में देखें, बाकी तरीकों के कंपेरिजन में देखें। नेक्स्ट, अंडर विच मिशन नमो ड्रोन दीदी, जो कि एक स्कीम है जो प्रोवाइड करेगी ड्रोन्स टू द वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर विद एन आउटले ऑफ 1260 करोड़ रुपीज, उसको लॉन्च किया गया। कौन सा मिशन रहेगा? वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर ये नमो दीदी ड्रोन स्कीम लाई गई जिसके अंडर जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको ड्रोन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको यूज कर सके एंड अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो कर सके। इसके अंडर हम 14,500 वीमेंस को सेलेक्ट किया जाएगा जिनको यहाँ पे ड्रोन्स प्रोवाइड कराने का ये काम करेंगे। नेक्स्ट, किस जूलॉजिकल पार्क को या फिर कौन सा जूलॉजिकल पार्क पहला जू बन गया है इंडिया में जिन्होंने रिसीव किया IGBC सर्टिफिकेशन? IGBC क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेशन। तो वो कौन सा जू है? वो है आपका
दुर्गेश आर्याना जूलॉजिकल पार्क हिमाचल प्रदेश में है एंड ये इन्वायरमेंट को कंजर्व करने का काम करते हैं एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्रमोट करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं बायोडाइवर्सिटी की एंड इसी के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। इवन यहाँ पे 609 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे इसको और बेटर करने के लिए, इसको बनाने में। एंड यहीं पे हम देखेंगे इससे जो टूरिज्म है वो भी हिमाचल प्रदेश में बढ़ता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड द सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल फॉर 3 years टर्म। 3 सालों के लिए स्टैब्लिश की गई है। लोग बच्चों को जो अपकमिंग यूथ होगा उनको यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोवाइड कराने का काम करेगा। यहीं पे आप देखेंगे प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक जो सेक्टर्स हैं, पब्लिक कंपनीज हैं, उनके साथ टाई अप रहेगा। करेक्ट। तो किस मिनिस्ट्री ने रिकॉन्स्टिट्यूट की है सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल? तो ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 15th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वज्र प्रहार? इसको शेड्यूल किया गया टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 2nd to 22nd of November। तो 15th एडिशन ऑफ वज्र प्रहार एक्सरसाइज कहां पर हुई, लोकेशन क्या है? तो वो इडाहो यूएसए में हमें देखने को मिली थी। राइट। यहीं पे अगर हम देखें तो इंडिया की तरफ से कब पार्टिसिपेट किया गया था इसमें? ये 15th एडिशन में पार्टिसिपेट किया गया था, वज्र प्रहार में पार्टिसिपेट किया गया था एंड 45 पर्सनल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द एक्सरसाइज जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई फ्रॉम 1st to 12th of November जकार्ता इंडोनेशिया में। तो गरुड़ा शक्ति ये एक्सरसाइज का नाम रहेगा। इंडिया से 40 पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम पैराशूट रेजिमेंट। ठीक है, और कहां पर? जकार्ता इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंस किया दैट एनी एंटिटी सीकिंग ऑथराइजेशन और रिकॉग्निशन एज सेंट्रल काउंटर पार्टी शुड हैव एटलीस्ट नेटवर्थ ऑफ कितना? तो उनकी 300 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए। देखो मान लो फॉर कोई लोग हैं वो ये बाय कर रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं, या ये सेल कर रहे हैं, या ये बाय कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट नहीं होता। इनके बीच में एक या फिर हम कहते हैं थर्ड पार्टी होती है जो इनसे बाय करेगी, इनको सेल करेगी, इनसे बाय करेगी या फिर इनको सेल करेगी। राइट। ऐसे ये मीडिएटर का काम करते हैं। तो ये जो सेंट्रल काउंटर पार्टी होगी सीसीपी, इनकी नेटवर्थ मिनिमम 300 करोड़ रुपए यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज रिसेंटली बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक। तो रीअपॉइंट किए गए हैं, कौन है? अमिताभ चौधरी, और आने वाले 3 सालों के लिए ये इस पोजीशन में रहेंगे। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द F1 ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स इन साओ पोलो ब्राजील? तो वो है मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, बेल्जियन डच ड्राइवर है। ये इनकी 4th स्ट्रेट मतलब लगातार चौथा विन रहेगा। एंड अगर 2024 की बात करें तो ये 8वीं विक्ट्री है इनकी। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल लीगल सर्विस डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो 9 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल लीगल सर्विस डे एंड पहली बार इस डे को 1995 में ऑब्जर्व किया गया था। एंड लीगल एड सबको मिल सके, ये सबका फंडामेंटल राइट है, इसकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, उस वॉल्केनो का नाम बताओ जो अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ इंडोनेशिया में, जहां पे 10 लोगों की भी जान चली गई। क्या नाम रहेगा उसका? माउंट लिवोटोबी लाकी लाकी, ये उस वॉल्केनो का नाम है। नेक्स्ट, इंडिया का वो पहला पोर्ट कौन सा बना जिन्होंने ग्रीन शिप इनिशिएटिव्स को यहाँ पे लॉन्च किया थ्रू एनवायरमेंट शिप इंडेक्स पोर्टल? कौन सा पोर्ट रहेगा? वो है मोरमोगोआ पोर्ट। कहाँ पर है ये? गोवा में है। इस पोर्ट के थ्रू हम देखेंगे कि सस्टेनेबली डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाएगा, एनवायरमेंट को कंजर्व किया जाएगा, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के ऊपर काम किया जाएगा, पॉल्यूशन को यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा एंड जो फ्यूल भी यहाँ पे यूज किया जाएगा ना, वो ग्रीन फ्यूल यहाँ पे यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल वाटर कमीशन रिपोर्ट, जो ग्लेशियल लेक्स हैं वो, क्योंकि हम जानते हैं टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज होगा तो जो बर्फ है वो पिघलेगी तो वाटर बनेगा। राइट। और इसी के चक्कर में जो ये हिमालय की ग्लेशियल लेक्स है ना, इनका जो एरिया है, बर्फ पिघलने से पानी बढ़ गया तो एरिया भी एक्सपेंड हो गया। तो 10.81% का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला ड्यू टू क्लाइमेट चेंज 2024 में। इवन 67 लेक्स तो ऐसी थी जहां पे उनका एरिया 40% से बढ़ गया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट, जो एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट इनके द्वारा रिलीज की गई एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, इन्होंने बताया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से 2070 तक जो एशिया पैसिफिक रीजन है वहां पर हमें कितनी जीडीपी का लॉस देखने को मिलेगा? तो
तो हमें 16.9% जीडीपी का लॉस देखने को मिलेगा 2070 तक। वहीं पे अगर मैं इंडिया स्पेसिफिक हो जाता हूं, इंडिया में कितना जीडीपी का लॉस देखने को मिलेगा? 24.7% जीडीपी का लॉस देखने को मिलेगा 2070 तक, अगर ये क्लाइमेट चेंज का सिनेरियो ऐसे ही चलता रहा। नेक्स्ट, हु हैज टॉप्ड द 11th एडिशन ऑफ ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट, जो कि रिलीज की गई एल्डेलगी फाउंडेशन के द्वारा इन पार्टनरशिप विद ह्यूरन इंडिया। तो वो है शिव नादर, राइट। ये इन्होंने टॉप किया है 11th एडिशन ऑफ ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, मुस्काट ओमान में। तो हरमनप्रीत सिंह, राइट, इन्होंने यहाँ पे जीत लिया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मैन प्लेयर ऑफ द ईयर टाइटल मुस्काट ओमान में। नेक्स्ट, विच वर्ड इसको सेलेक्ट किया गया कॉलिंस के द्वारा एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2024? तो ब्रैट। ब्रैट बेसिकली एक वो इंडिविजुअल पर्सन होता है जो कि खुद को बहुत कॉन्फिडेंट समझता है, राइट, इन अ नेगेटिव वे, राइट। किसी को भी कुछ भी बोल देता है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, चीज़ें नहीं पता होती लेकिन फिर भी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, राइट। इसको हम बोलते हैं ब्रैट, एंड जनरली ये नेगेटिव टर्म में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली स्वॉन इन एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो ये है जस्टिस संजीव खन्ना। ये सक्सीड करेंगे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को, जो कि 50th चीफ जस्टिस थे इंडिया के। अगर मैं बात करूं चीफ जस्टिस की जो ओथ होती है वो कौन प्रिजाइड करता है? इट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू मैम। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली रीइलेक्टेड टू अ सेकंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा? तो किनको अपॉइंट किया गया, कौन इलेक्ट की गई हैं फॉर द सेकंड टर्म? माया सांधू। नेक्स्ट, इन विच सिटी इंडिया का पहला मार्स एंड मून एनालॉग मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये बेसिकली मिशन है ताकि सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशंस को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जा सके, क्योंकि हम देखते हैं लेह में जहाँ पे ये मिशन लॉन्च किया गया है वहाँ पर आपका -10 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है और नीचे चला जाता है, रॉकी टेरेन है वहाँ पर, राइट, लो 40% लो ऑक्सीजन वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशंस यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं, इसलिए यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, When is UN वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 10 नवंबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। इसकी थीम रहेगी यूथ एट द फोरफ्रंट, ये थीम रहेगी यहाँ पर, राइट। और पहली बार इस डे को 2002 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल एजुकेशन डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद? तो 11 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। पहली बार इस डे को 2008 में ऑब्जर्व किया गया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है, एंड ये इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के।